At the circle, we operate with the belief that all children, no matter where they're coming from, deserve a life that is filled with opportunity, choice, and dignity. At the circle, we reinvent schools, after schools, and teacher training institutions to work towards that belief. Our commitment is that we want to build an India that is free of poverty and filled with love. We do this in three ways. We launched something last year, which is our newest vertical called Circle U. Circle U is working with the teacher workforce and reinventing what teacher education looks like. We have something called the Circle Labs, where throughout the year we do a lot of short term programs and exciting conversations, just like the one you're about to hear. And the third thing that we do is called the Circle Incubation, which is a 2-year program for entrepreneurs who want to start their own schools and after school spaces. The entrepreneurs who come on board are very, very committed and passionate about the children and communities that they work with. One such entrepreneur is Shreya, who has designed this session and will be moderating the panel you're about to hear. Shreya is based out of Raipur, Chhattisgarh, and is working on the new learning center with the Circle Incubation. She is a teacher, an activist, and works across a lot of other human rights initiatives in Chhattisgarh as well. She has put together a really powerful panel, and I will, in a second, hand off the session to her to introduce all the passionate educators and young people who've joined us. This is what our time looks like today. The idea with the circle, everything that we do at the circle, we believe that the child should be at the center of everything that we do. The child is our primary stakeholder. But we also understand that in India, जब हम low income communities की बात करते हैं, the realities everywhere are very different. तो हर बच्चे की ज़रूरतें, realities, उनकी abilities समझना बहुत important है, and we have to understand their backgrounds as well, which is what the conversation will largely be about. We'll navigate how all the panelists who come together or would जिस भी area में काम करते हैं, how they actually understand the system and how they work to change and transform that system as well. And we'll have our second last section, which is something I'm very excited about, which is called Stories of Hope and Himmat. We'll show you glimpses of all the work that our panelists are doing on the ground. And then we'll open up for audience Q&A in the last 20 minutes. So please stick around for that. But keep putting your thoughts and questions on the chat as we are doing the panel for the next 40 minutes or so. Keep the chat alive. And feel free to just ask all the questions and anything that's coming up for you on the chat. This conversation will be a mix of Hindi and English, and on the chat, you will be getting summaries of the conversation. I'm just going to hand it off to Shreya to introduce the panelists and kick us off. Thank you, everyone, for being here. Thank you very much, Amina, and thank you to the Circle for organizing an event like this. It's very rare that all of us also who have known each other for a long time get come to this. So thank you to the panel for agreeing to come together in this. When Amina approached me to talk about like adversity in childhoods, the imagination at first was thinking of conflict zones. And it was a time when I had also just come back from Bastar, where several children had been shot by the police and paramilitary there. And yet there was something else in that whole situation of extreme violence that also stayed with me. And it was when we were trying to estimate the age of one of the children in those hills. And one of the adults there said, she must be around 4 years of age. And so somebody else looked at me and said, no, wo 4 ki nahi ho sakti hai. She can't be 4. She must be 5 because she does a lot of housework and a lot of other work. And so what it was a reminder of, a stark reminder of, is that childhoods themselves varied a lot, both historically and across caste and class lines. And so our imagination of childhood, as we see it, needs to be understood in its many, many layers
in order to even unpack what adversity is. And for Bahujan working class children, adversity and actually extreme violence is in the everyday. It is in the everyday, and it's constantly invisibilized by the formal education system. Whether it is how we sit in the classroom staring at the blackboard in a state of incomprehension, or to actual physical punishment, which is very common across schools even today, or to the fact that the curriculum has nothing that actually even speaks of your life or your experiences, or the fact that policy never takes into consideration your life cycles, your parents' livelihoods, or what your cultural and social background is, or the, of course, very deep structural violence that comes in the way of pursuing a meaningful education, everything from debt to violence in this in a society which is constantly reminding our students and children their place in a highly unequal world. And I remember there are two small instances I want to share before I introduce our panelists, and that is that at the time when we used to work only in primary school, when we started meeting some of our ex-students, I remember several of our students started dropping out of school, and we were wondering what we were doing wrong. And we realized that post-primary school, this gets far more acute. And I remember one child who said to me that he's not going to school anymore because he was hit. And so we're trying to convince him, saying, okay, we'll come and talk in school. You were hit once. We'll come and tell them. He said, no, it's not once. One day it's not for doing homework. One day it's because I've worn the wrong shoes. One day it's because my face is so black and they don't like the look of it. At least now I earn. And another child who said to me, why are you asking me to go to school? There was somebody who had committed suicide in their school. And he said, because of that, that's how you want me to end up. And so these were stark reminders that adversity really is in the real everyday violence that our children are constantly faced with. And couple this with a nation that actually criminalizes its children in terms of like even the new the amended act says that if your parents are illegal migrants, you yourself are born illegal. So you're criminal by birth in so many ways in this society, which is filled with graded hierarchies. And yet it is always children who teach us to hope in the face of such despair. And also people like the four panelists we have today working in education and pursuing their education, who give us the courage to continue to dream and to continue to do meaningful work in this kind of situation. So thank you very, very much, Sabha, Revti, Bali, and Gayatri for joining us today. Sabha has been an educator for the last 15 years. She has worked extensively in Bhopal and other parts of Madhya Pradesh. And now through the Savitribai Phule Fatima Sheikh Library, she is working in particular with Pasmanda, Dalit, and marginalized communities. And she focuses also on young girls and young women accessing education in a meaningful way. Bali Jagat is also an educator from Madhya Pradesh based in Bhopal. She has been working for the last 12 years with children from marginalized communities. And she has been a teacher, an educator, also an author. And she likes to introduce herself that she likes to listen to the experiences of childhood and relive the masti, mazak, and badmashi of childhood along with children and feel that together with them. Revti is the founder and director of Vanaville, which is a trust and school working with nomadic tribe communities in Tamil Nadu since 2005. Their work focuses on child nutrition, education, and livelihood support. Gayatri is from the northern part of Raigad, which is the coal mining area, and she is currently a student in the Women's Studies Department at Savitribai Phule University in Pune. And before this, she also ran a library in her village and worked with children there before pursuing her master's. Thank you very, very much, all four of you, for joining us today. I would like us to start off with the question of adversity in the everyday. Why do we need to reframe it? And हमारे बच्चों के लिए आपदा रोजमर्रा कैसे होता है
हमारे अलग अलग संदर्भों से, अलग अलग ज्योग्राफी से अगर हम उस पर थोड़ा बात रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं सबसे पहले बाली को आमंत्रित करती हूँ भोपाल के संदर्भ में उनके काम के आधार पे इस पर बात रखने को। थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत समय के बाद इस तरह से लोग सुनने को आए हैं, और अच्छा लगेगा कि लोग इस चीज को भी जाने जो बाकी हम लोग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो लगता है कि आपदा अगर हम सुन रहे हैं और आपदा हमारे जगह पर अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहला लगता है कि एक तो आदिवासी होना, पर अपनी जगहों पर जैसे अपनी जड़ों पर हैं जहाँ रचे बसे हैं, वहां से निकल के शहर में आना सबसे बड़ी आपदा लगती है। क्योंकि जब वहां पर आ जाते हैं तो एक तो अपन पूरे आदिवासी नहीं रहते हैं, और साथ में शहर के जो लोग हैं, शहर का जो कल्चर है, वहां पर जो काम धंधे मिलने वाले होते हैं तो वो अपन के परंपरागत नहीं होते हैं। ना ही वो स्किल अपन के पास होते हैं जो अपन को वहां पर स्वीकृत करने होते हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब बड़ी आपदा यही होती है कि उससे जब शहरीकरण में आते हैं और शहर में रच बस जाते हैं तो सब कुछ छूट जाता है। और छूटने के बाद नया घर बनाना, नए लोग रहना, फिर वहां पर नया काम ढूंढना और अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। और धीरे धीरे मतलब स्किल्स नहीं बढ़ते हैं, खासकर जो पुराने लोग हैं, तो वो लोग जल्दी नए स्किल सीख नहीं पाते हैं क्योंकि उनके साथ मुश्किल होता है। अभी के जो युवा है वो जरूर उस चीज में अभी ढल रहे हैं, नए नए लोगों के साथ नए दोस्त बना रहे हैं, अपने दोस्तों को छोड़कर ऐसे दोस्त बना रहे हैं जैसे मिस्त्री बना रहे हैं, या फिर जो टाइल्स लगाने वाले हैं उनके साथ जुड़ रहे हैं। किसी को नया काम आ रहा है प्लम्बरी का तो वो जोड़ रहे हैं। पर जो पुराने, जो अभी 40-45 की उम्र के जो लोग हैं, उनको अभी भी काम नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको सिर्फ खुदाई करना आता है, और फिर उनको ये तालाब बनाना या कुआं, उस तरह के काम जो पुराने समय से वो लोग पेड़ काटना इस तरह के करते आए हैं, तो वही काम आ रहे हैं। तो उनकी जो बेरोजगारी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पर अभी कुछ युवाओं को मिल रहा है, पर जिस तरह से मशीनीकरण हुआ है तो वो बहुत परेशान किया है। तो बेरोजगारी एक तो इतनी है कि हर जगह पर फैल रही है, और ऊपर से शहर में आए हैं तो शहर का जो मतलब वातावरण है वो लगातार महंगाई के वजह से और परेशान कर रहा है। और आदिवासियों में ज्यादातर इतना होता है कि परिवार को अलग अलग नहीं करते हैं। जैसे मम्मी पापा भी वहीं रहेंगे, भाई बहन भी वहीं है, या फिर छोटे भाई बहन है, भैया है, भाभी है, उसके बच्चे भी वहीं है। तो एक परिवार मतलब छोटा ना होकर बड़ा हो जाता है। तो उन सबको पालना पोसना, सबकी जरूरतें पूरी करना, तो ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। और खासकर धंधे आजकल मिल नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग सीख रहे हैं उनके साथ भी पैसों की एक बहुत कमी रहती है कि लोग काम करवा लेते हैं, पर जितनी मजदूरी है उतनी मजदूरी नहीं देते हैं। और उसके साथ जैसे शहर के जो लोग हैं, काम करने की आसानी में बहुत अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, पहले बोलेंगे 500 का है, पर जैसे ही काम हो जाता है वो घटते घटते 300 तक आ जाते हैं। तो बहसबाजी करना, परेशान करना, और फिर कीमत नहीं देना, और फिर पढ़ाई लिखाई का इतना ये दिखाना कि पुलिस को बता देंगे। कि जैसे एक दिन मेरा भैया काम करने के लिए गया पर काम नहीं मिला, तो एक पेड़ काटने के लिए राजी हो गया। तो पेड़ काटने के लिए जब हुआ तो पेड़ काटा उसने, और जिस तरह से परेशान हुआ कि पेड़ काट दिया, और जब पैसे मांगे, और फिर पुलिस वाला आ गया, उसने बोला कि पेड़ काटना तो गलत काम है, तुमको मतलब सजा मिलेगी, पेड़ काटना आजकल सरकार ने बंद कर दिया है। और ये मतलब वो सीधा वो वन विभाग वाले इसमें रूट में चला गया, और फिर जिसके पेड़ काटे उसने पैसे भी नहीं दिए, और पुलिस वाला उनको थाने में लेके चला गया। तो रात भर थाने में रहना, घर वालों को पता नहीं होना, कमाने गए हैं, और जो घर के लोग हैं वो भूखे हैं, क्योंकि रोज कमाना रोज खाना होता है, क्योंकि ये डेली जॉब का या फिर महीने वाला कुछ नहीं रहता है। तो इतना सारा परेशानी जो होती है वो बड़ी आपदाएं होती है। एक आदिवासी जब शहरी आदिवासी में बदलता है और परेशान होता है, और बहुत सारी चीजें उनको परेशान ही करती है, तो निकलना इतना आसान नहीं होता कि जैसे शहर में आ गए हैं तो पढ़ना लिखना आ गया है, या फिर
काम धंधे या बहुत सारी चीजें, जैसे पानी जल्दी मिल जाता है, पास में मिल जाता है, बहुत सारी चीजें पास पास में होती है, पर पास पास में होने के बाद भी वो इतनी खुशी नहीं देती है जितनी मतलब लगता है कि अपने जगह होते, अपने लोगों के साथ होते, अपने लोग जिस तरह से मतलब संभालते थे। आजकल रिश्ते नाते भी उस तरह के नहीं रहे कि चलो अगर तुमको दिक्कत है, तुमको मतलब जरूरत है तो दे दो। सब आजकल अपना अपना सोचते हैं, क्योंकि शहर में कोई कब फंस जाए, कब जरूरत पड़ जाए, तो आजकल लोग अपने कम मतलब स्वार्थी ज्यादा हो गए हैं बोलने को, चाहे वो आदिवासी आदिवासी के अंदर ही क्यों ना हो। तो ये सब जो आपदाएं हैं मतलब एक परंपरागत चीजें छोड़ भी रही हैं, नया सीख भी रहे हैं, पर वो मेल मिलाप या वो खुशी जो होती थी वो बहुत कम हो गई है मुझे लगता है इस दौर में। थैंक यू बाली। सबा, आप भी उसी ज्योग्राफी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो बाली के बातों पर जोड़ते हुए अगर आप ये भी थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि बच्चों के स्कूली जीवन इस संदर्भ में कैसे होते हैं, और ये जो पुलिस की जो बात बार बार आती है, इन्हीं बच्चों के जीवन में क्यों आती है, उसका भी एक ऐतिहासिक कारण है जहां हम बचपन से ही आपराधिक घोषित किए गए हैं। आप लोगों ने सालों से ऐसे बच्चों के साथ काम किया है, खाने से लेकर स्कूल तक, तो उसको भी जोड़ते हुए आप थोड़ा सा अगर बात रख सकते हैं तो। शुक्रिया श्रेया। थैंक यू बाली, इतनी जरूरी बातें आपने शुरू की। जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम सबा है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। बाली जो कह रही है मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि वो गोंड समुदाय से आती हैं, वो चाहे गोंड समुदाय की बात हो या रोजाना बाली या मैं जहाँ काम करती हूँ वो मदारी समुदाय की बात हो, या श्रेया जो कह रही है विमुक्त आदिवासी पारधी समुदाय या कंजर समुदाय के बच्चों की शिक्षा की बात हो। तो अभी वर्तमान में मैं मदारी और पसमंदा आदिवासी और दलित समुदाय के बच्चों की और लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में वर्तमान में उस तरह का काम से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर 5 साल से पीछे जाऊं तो रोजाना अ, खास तौर पे घुमंतु पारधी और कंजर समुदाय के बच्चों की शिक्षा के हालातों को भी बहुत करीब से देखा है। तो जो श्रेया भी कह रही है क्रिमिनलाइजेशन की बात की, और जो बाली ने शुरू किया कि शहरों में जब आदिवासी शहरों की तरफ पलायन कर आते हैं, या मैं जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ मदारी समुदाय को जब पिछले 30 सालों में फॉरेस्ट की जमीन कहते हुए या फॉरेस्ट राइट एक्ट आने के बाद में जब शहरों की तरफ विस्थापित किया गया, या फिर मैं बात करूं उन लेबर्स की जो भोपाल जैसे स्मार्ट सिटी है आज, स्मार्ट सिटी होने जा रहा है और अभी मेट्रो सिटी में तब्दील होता जा रहा है, जिस तरह के डेवलप शहर हो रहे हैं, उन शहरों को विकसित करने के लिए जो लेबर पूरे देश से ग्रामीण से मनरेगा के जो मजदूर शहरों की तरफ शहरों को बनाने के लिए आए हैं, उनके बच्चों की अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगी कि इसको हम थोड़ा हिस्सों में देखते हैं। हम आदिवासी बच्चों के संदर्भ में अगर बात करें तो जो बाली ने कहा कि वो अपने पुश्तैनी कामों को जानते थे, वो चाहे खेती से जुड़े हुए काम हो या फिर बंदर भालू का खेल दिखाने वाले काम हो जिसमें वो पेरेंट्स के साथ में जा रहे होते थे, या फिर वो रस्सी पे चलना या अलग अलग तरह की हुनर दिखाना जो आदिवासी अपने हुनर जानते थे, या पक्षी पकड़ना और उस तरह का काम जानते थे। अभी जब वो शहरों में है तो बच्चों के माता पिता पिछले 20-25 सालों से एक तरह से पूरी तरह बेरोजगार हैं, और शहरों में जो स्किल हैं वो उसके साथ जोड़ नहीं पाए हैं। ऐसी हालातों में बच्चे या तो कबाड़ बीनने, पन्नी बीनने, प्लास्टिक बीनने, बोतल बीनने के, कबाड़ बीनने के काम में जुड़े हुए हैं। और ये बच्चे जब बीनने के काम में होते हैं और एक तरह से इनकी जो बसाहटें हैं वो कहीं ना कहीं चमकते हुए शहरों के लिए एक तरह से निशान की तरह दिखती हैं, तो आप वो गरीब देश को बनाने में सहयोग भी दे रहे हैं। आप उन इतनी बड़ी आबादी को कहाँ लेके जाएंगे? उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि
विमुक्त आदिवासी बच्चे अभी तक सरकारी स्कूलों में उतनी संख्या में नहीं पहुंच पाए हैं। सो जिसके कारण अलग अलग तरह के औपचारिक सेंटर हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग जगह अलग अलग इस तरह के अनौपचारिक स्कूल्स आदिवासी बच्चों के लिए चिंता के लिए काम कर रहे लोगों ने शुरू किए हैं। और इन बच्चों के अगर हम बात करें कि इनकी जिंदगियां ये कैसे सरकारी स्कूलों तक में नहीं अगर ठहर रहे हैं, सो उसके पीछे के कारण देखते हैं कि बच्चे अगर कमाई के काम से जुड़े हैं और वो कमाई के काम कबाड़ के काम हैं या कुछ इस तरह के काम हैं, लाइट बत्ती लगाने के लिए शादी पार्टी में जाना या फिर कैटरिंग के काम में मदद कर देना। तो क्योंकि हम अपने ही देश में ये भी देखते हैं कि बाल श्रम को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बाली कह रही है कि इतना रोजगार की विफलता विफलता है, उसके चलते जब बच्चे इस तरह के कामों में हैं और आ, उस दौरान बच्चे बहुत अलग अलग तरह की नशे में जाना या आपराधिक गतिविधियों में भी कभी कभी संलिप्त होना या ना होते हुए भी बच्चों को अपराधियों की तरह देखे जाना छोटे छोटे मामलों में, वो भी शहरों में बड़े पैमाने पे दिखता है। और स्कूल में भी, और जब बच्चे इन तबके 20 से साल आते हैं तो में सरकारी वालों की स्कूलों में उन बच्चों का ठहर पाना या स्कूल में के भीतर बाकी बच्चों से कहेंगे कि वो भी वंचित समुदायों से होने के बावजूद बाकी बच्चों के साथ एक तरह का असमानता महसूस करना, वो चाहे शिक्षकों के व्यवहार के चलते हो या दूसरे समुदाय के बच्चों के व्यवहार के चलते हो, या फिर जो बाली कह रही थी गोंड समुदाय के बच्चों की जबान के चलते हो या आदिवासी समुदाय के बच्चों की अपनी जबान के चलते हो या मुसलमान बच्चों के मदरसे में पढ़ने और उनकी भाषा के चलते हो। सो ये जो चुनौतियां हैं वो रोजाना बच्चे उसको रोज फेस कर रहे होते हैं, और ऐसे ये जो बारीक बारीक चीजें हैं ये उनको शिक्षा से कहीं दूर धकेल देती हैं और उनको पिछड़ा देती हैं। ये हम सब रोज देख रहे होते हैं, और अ, हम इतना पीछे से बात कर रहे हैं परिवारों की स्थिति के बारे में या रोजगार के बारे में या वो बच्चे कहाँ काम पे हैं उसके बारे में, क्योंकि हम सब इसी चिंता से काम करने की शुरुआत करते हैं कि क्यों स्कूल से बाहर दिख रहे हैं, ये क्यों स्कूल में नहीं है, इनको तो जाने का पसंद ही नहीं है पढ़ाई करना। लेकिन जब एक बार ये धागा जुड़ता है तो वो जुड़ते हुए पीछे तह तक पहुंचता है तो मालूम पड़ता है कि जिंदगी में शिक्षा की कमी और जरूरत को वो महसूस करते हैं। उनके भी हर बच्चे के सपने में, हर माँ बाप के सपने में पहले पढ़ाई का जिक्र आता है, लेकिन वो कैसे पिछड़ भी जाता है। समुदाय समुदाय आधारित गैर बराबरी, शैक्षणिक संस्थानों की गैर बराबरी, रोजाना की जिंदगी में दो वक्त खाने की चुनौतियां, और वो मजदूरों के बच्चे हो जो दूसरी जगह से पलायन करके आए हैं या आदिवासी समुदायों के बच्चे हों, शहर में उनकी स्वीकार्यता नहीं है समुदायों को। मतलब ये जो भोपाल के बारे में मैं कहूंगी कि आज भोपाल मेट्रो सिटी है, स्मार्ट 20 सिटीज में से एक है, लेकिन आज भी वो लोग डंपिंग ग्राउंड के बाहर ही पड़े हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समुदाय हैं, हमारे जो लोग हैं, वो डंपिंग ग्राउंड के किनारे पे रह रहे हैं, किसी नाले के किनारे पे रह रहे हैं, और वो जहाँ पढ़ने जा रहे हैं उन स्कूलों में कोई गंभीर नहीं है उनकी शिक्षा को लेकर, किसी को चिंता नहीं है। ये बहुत साफ दिखता है। सो थैंक यू सबा, आपने बहुत सारे आयामों को खोला है एंड आई थिंक बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट आयामों को खोला है एंड आई थिंक सबा has started us off very beautifully to move adversity, like understand adversity is also systemic, it is also structural. And I would now invite Revati, who works in a very different geography of Tamil Nadu, but also with nomadic tribe communities, to share your experience and knowledge of working with these communities. How does adversity pan out, and what are the systemic issues that children from such communities face in accessing and thriving in formal education?
Thank you, Circle and Shreya, for this amazing panel. I'm really stunned with all the inputs that Bali and Sabah have said. That our situation is also similar, but because South India is a little bit more developed, there have been some interventions in these things, but the problems I think are the same. Along with unemployment and this whole criminalization that we face, we work with nomadic tribe, children from nomadic tribes. This criminalization of a way of life starts with criminalization of certain tribes, and now, as Sabah said, we are criminalizing children because most of our initial work, and even now we have to do this, is to get children out of they get arrested or they get caught because they are in rack picking or child labor, and we also want the children to be in school and have a protected childhood. But at the same time, when a whole way of life is criminalized, when a community is seen as criminals, when no employment is available and there's so much stigma, it becomes there are only very few things available. But I would like to also move into the classroom and how does it affect the child who's coming? I think even though it is talked about so much in the macro level, a biggest adversity still in our country seems to be hunger. This hunger and malnutrition is really crippling because as a teacher, if you look at your classroom, it creates so many infections. Children are constantly absent because malnutrition keeps you weak, and it also, I feel, affects the quality of that learning experience. Even with whatever interventions there are in providing nutrition, I find malnutrition to be a very big issue, not only for NT-DNT communities, but for a majority of Adivasi, Dalits, and a majority of Bahujan students also. So, along with unemployment and this criminalization, hunger is also one thing. And I think there is also the stigma is also something we need to speak, because when we talk about discrimination and large scale riots or problems, there is also this everyday stigma you face as a child. Sabha also mentioned about it, this language being uh, made fun of or spoken ill of. We were part of a study where we spoke to many teachers and students, and the way they describe children from the NT-DNT or Adivasi communities, it always starts from the way they speak, the language. It's actually about the language and the way they speak, and this constant othering, to exist as a child in a system where structurally also you have problem, like there is homelessness, there's poverty, there's hunger, but within the class also you're considered as an other, and many times they're pointed out, and somebody notices them somewhere on the street when they're going with their parents for rack picking or anything. That also adds to it. And even the curriculum, that where they don't find any space, they no child like them is ever in the textbooks, and constantly we are peddling this one nice child image, which is very upper class or upper caste, or at least they've come up to the middle level, but it's very 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 it's impossible to find an Adivasi child or a Vimukta child, NT-DNT child, or a child who's working along with his or her parents, be in agrarian or be as a vendor, and who still is trying to study, because that's the reality of most of our NT-DNT children. They will have to work a little bit. It's not like they can completely give up that part, and they still study. So we can't see such children in our curriculum, or we are not even open to discuss about this. And I think looking at adversity as an episodic thing, like the natural disaster, we are from a town which is constantly prone to floods, and we had a tsunami and many things. But these things are also a problem. These things are more problem for children who are already struggling with all the other problems. But when we think of adversity as an episodic thing, we also imagine, I think in our imagination, we think we can overcome this by some one or two interventions. Whereas the adversity, the way it affects these communities and the way it is present in every day, it requires more grounded and more holistic intervention, is what I want to say. Thank you so much, Revati, for raising many important issues. And चूंकि आप हमको ज्योग्राफी के बारीकियों में भी ले गए एंड क्लासरूम के अंदर भी,
कि आई थिंक बहुत सारे चीजें जो है वो बहुत पर्टिकुलर होती हैं कि हम किस इलाके से भी आते हैं। एंड जब पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, तो ये सब चीजों का एक कल्पना भी नहीं होता है पॉलिसी मेकर्स के इमेजिनेशन में, क्योंकि जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं वो इन जमीनी हकीकतों से वाकिफ नहीं होते हैं। एंड इसीलिए आई थिंक रिच डिस्कशन लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के चलते आई थिंक गायत्री, आप इस पे बहुत ही अच्छे से एक अपने अनुभव एंड नॉलेज के साथ इस पे बात रख पाएंगे, क्योंकि आप भी एक ऐसे ज्योग्राफी से आते हो, एक ऐसे इलाके से आते हो जिसका संदर्भ अनदेखा किया जाता है, टेक्स्ट बुक से लेके नीति तक अनदेखा किया जाता है। और वहाँ एक स्टूडेंट भी होना और एक लाइब्रेरी एजुकेटर होना, उस पे आपके खुद के स्कूलिंग के एक्सपीरियंसेस एंड आपका वहाँ एक लाइब्रेरी चलाने के एक्सपीरियंस से जोड़ते हुए अगर आप इस पे बात रख पाएंगे, वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो रेवती ने भी कहा, वो जो आदर्श बच्चा जिसके आधार पे टेक्स्ट बुक्स बनती है, करिकुलम बनता है, पूरा शिक्षा व्यवस्था जुड़ा है, वो आदर्श बच्चा हम शायद कहीं नहीं पाते हैं। केवल वो पावरफुल समुदाय के बच्चों को पाते हैं जिनके लिए इतने सारे बाधाएं नहीं है। लेकिन आप अपने एक्सपीरियंसेस को, नॉलेज को शेयर करते तो शायद ये और भी एक रिच आयाम इस कॉन्वर्जेशन में आ जाता। जरूर। सभी को गुड इवनिंग, जय भीम। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बिकॉज ऑफ इतने सारे लोग हैं। एक्चुअली मैं नहीं देख पा रही हूँ लेकिन वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई डोंट नो कि मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि पहले कभी किया नहीं तो। एंड थैंक यू कि मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। अदरवाइज कोई सुनता नहीं है कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया है, और हमको सुनने के लिए कोई होता भी नहीं है शायद। और आप लोगों ने इतने संख्या में हमको सुनने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू। एंड हाँ, मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हूँ, और फिर मैंने वहाँ एक कोल, मतलब वहाँ पे कोल माइनिंग एरिया है। एंड अडानी, अंबुजा, मोनेट फाउंडेशन, कई सारी कंपनियां हैं जो अभी जंगलों को बहुत मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां वहां के आदिवासी, ट्राइबल्स एंड ऑल्सो मार्जिनलाइज ग्रुप के जैसे दलित समुदाय के लोग, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि अभी कंपनी आती है गाँव में, तो वो गायत्री, कि सभी एक एक इंसान पे एक आदमी को हम नौकरी देंगे, लेकिन बाद में जब कंपनी वहां पे आ जाती है और उसके बाद जो वादे किए होते हैं वो भूल जाती है वो। यस। एंड आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं हेलो। नहीं, अब आ रही है हमने आपका। वीडियो ऑफ कर दिया है क्योंकि सो डेटा सॉरी। शायद काम नहीं कर रहा था। अभी आप बोलिए, अभी आ रही है। हेलो। या एंड कि वहां पे कैसे लोग अपने रोजमर्रा की स्ट्रगल, और फिर वो मेरे लाइफ से कैसे जुड़ी होती है, और फिर मैं कैसे उस चीज को देख पाती हूँ कि वो मेरे कास्ट को लेकर के वहां पे, कि मैं एक दलित हूँ और मैं वहां पे कैसे एक लाइब्रेरी चलाती हूँ, तो वहां के जो लोग हैं वो कैसे देख पाते हैं मुझे। एंड वो अपने बच्चों को मेरे घर में पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते क्योंकि मैं एक दलित समुदाय से हूँ। और फिर वहां अगर बच्चे को हम बोलते भी हैं कि चलो करके घर पे हम बुलाने भी जाते हैं, तो वो कैसे मेरे घर को देखते हैं कि उसके घर का पानी मत पीना या खाना मत खाना। लेकिन बुलाने कौन जा रहा है? अगर मैं जा रही हूँ तो वो नहीं आना चाहते या नहीं भेजना चाहते। लेकिन अगर दूसरे लोग जाते हैं जो उनको लगता है कि हाँ ये थोड़े अपर कास्ट के हैं या ये थोड़े मोर एजुकेटेड हैं, इनके थोड़े अच्छे पहुंच है, तो उन लोगों के साथ वो भेजना चाहते हैं। लेकिन हमको लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये लोग तो दलित समुदाय से हैं, तो उन पे मुझे अलग फेस करना पड़ा था। लेकिन हाँ, बच्चे बाद में धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे थे। लेकिन ये भी सवाल रहा था कि तुम वहां जाके अगर हम बच्चों को पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो माहौल और वो एक अलग ही बच्चों पर इफेक्ट देता है कि हाँ हम तो बड़े होकर के कोल माइनिंग में काम करना चाहते हैं। तो मतलब हम कब 18 साल के हो जाएं उसके बाद कोल माइनिंग में काम करेंगे। तो ये चीजें हैं कि वो एजुकेशन को कैसे देखते हैं और मैं कैसे देखती हूँ, और मेरा क्या क्या स्ट्रगल रहा है।
और स्कूली लाइफ से भी, कि मैं अपने कास्ट और कम्युनिटी की वजह से मैंने बहुत मतलब अलग अलग चीजें स्ट्रगल की है, अलग अलग चीजें फेस की हुई है। तो वो चीजें मैं जोड़ पा रही हूँ, क्योंकि ट्राइबल्स भी कैसे दलित कम्युनिटी को एक डोमिनेंट करते हैं, जबकि वो मतलब क्योंकि वो ऐसा होता है कि हम अपने राइट्स को, अपने जैसे फॉरेस्ट राइट कहा किसी ने, तो पेशा कानून होते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट होते हैं या फिफ्थ शेड्यूल होते हैं, उसको हम कैसे देखते हैं। और वहां पे मोनेट फाउंडेशन को लेकर कि हम अपने इंडिविजुअल राइट्स को भी कैसे देखते हैं और फिर कम्युनिटी राइट्स को भी कैसे देखते हैं। तो वो अलग अलग चीजें वहां पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैंने भी किया है, और मैं शायद यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाती अगर मुझे एक एक संगठन का सपोर्ट नहीं होता। और मैं भी कैसे एक संगठन से जुड़ी, जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संगठन था, उसमें मैं कैसे जुड़ी और मैंने कैसे उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंची, वो भी मेरा अलग अलग जर्नी रहे हैं। और मतलब हाँ, यही सारी चीजें रहे हैं कि मैं कैसे कर पाई हूँ ये सारी चीजों को कनेक्ट, और वो चीजें मैं अभी समझ पा रही हूँ। पहले मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि इन चीजों को समझने की, कि लाइब्रेरी में हम कौन से बुक पढ़ेंगे या क्या करेंगे। तो लाइब्रेरी से भी मुझे बहुत अलग अलग चीजें सीखने को मिली। जैसे मैंने अम्बेडकर की बुक पढ़े, तब मुझे समझ में आया कि ये कास्ट कैसे मतलब बने हैं या सोसाइटी कैसे क्रिएट करती है, ये सारी चीजें। तो वहां से मुझे ये सारी चीजें समझ में आई, और फिर मैं अभी ये चीज समझ पाती हूँ कि जो दलित कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी एक्चुअली में बेचारे क्यों देखे जाते हैं वो, या फिर एक्चुअली में वो अपने राइट्स को जान नहीं पाते या कुछ चीजों तक वो पहुंच भी नहीं पाते। तो वो अपने आप को एक ऐसे देखते हैं कि हाँ, ये तो बड़े लोग हैं, हम उनके सामने जाके कैसे खड़े होंगे, कैसे अपनी बात रख पाएंगे। तो वो मतलब वो नहीं कर पाते, और शायद मैं भी ये नहीं कर पाती अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद। एंड यहाँ तक आने का मेरा ये मतलब बहुत बड़ा मतलब श्रेया दीदी का भी एंड वो ऑर्गेनाइजेशंस के भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इवन दैट्स इट। आई डोंट नो। थैंक यू गायत्री। आई थिंक सबसे बड़ा आपका इसमें आप ही का ये रहा है। और आई थिंक मैं आपको इस पे भी इनवाइट करती हूँ बात रखने को, क्योंकि ये शायद हमने कई सिस्टमिक इश्यूज पे बात किए हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इन वेरियस कैपेसिटीज हाउ द करिकुलम इज एलियनेटिंग फॉर चिल्ड्रन, how there is actual violence within the structures of school, how policy is not modeled for students from vulnerable communities. A lot of these things are talked about in many ways, but one of the ways in which the structural inequalities are preserved in and through education is also the gatekeeping role in which that is played through the denial of things like documents. And in a society that is increasingly placing heavy importance to documents, where you come from historically marginalized communities, where so in order to make a caste certificate, you're asked for certificates from 50, 70 years ago, all of which are related to having some kind of power and resources, either educational or land, all of which were denied to people from vulnerable communities. And yet the government insists on asking for these documents. So if you can add a little bit about that, Gayatri, that what is it? Yeah. या डॉक्यूमेंट्स को लेकर के मेरे बहुत सारे डिफिकल्टीज रहे हैं कि मैंने 2017 में अपने 12th पास आउट किए थे, लेकिन मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही मैं अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाई थी। लेकिन मैंने बाद में जब बहुत सारे स्ट्रगल के बाद कि वहां पे अगर हम जाते भी थे तो तुम्हारा अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ या फिर तुम अपने पूर्वजों का या जाति प्रमाण पत्र दिखाओ या स्थायी प्रमाण पत्र, जबकि हमारे जो हम दलित कम्युनिटी से हैं तो भी हमारे दादा परदादा जो है घुमंतु प्रजाति के थे भी वो लोग, तो उनके पास जमीन होते हुए भी, खेती करते हुए भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, क्योंकि उतना ज्यादा उनको ये समझ भी नहीं था कि हम डॉक्यूमेंट भी रखना होता है या फिर ये सारी चीजें। तो मैं जब डॉक्यूमेंट्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन मेरे से बन भी नहीं पा रहा था, और मेरे पूरी फैमिली और उसकी वजह से मेरे फैमिली में कई लोग आगे पढ़ भी नहीं पाए थे। और डॉक्यूमेंट्स मोर इम्पोर्टेंट इतना है अभी कर दिया गया है कि वो हमारे एजुकेशन को मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और वो हमारे लिए मोस्ट मतलब एक रुकावट है, सबसे बड़ी रुकावट है डॉक्यूमेंट्स की। मेरे लिए तो खास करके रहा था जब मैं मुझे कैसे हायर एजुकेशन से मुझे सपोर्ट मिला, और मेरे एजुकेशन और के लिए भी, और फिर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए भी कैसे मैं धीरे धीरे 3-4 साल स्ट्रगल की, 17 से 18, 19, 20, 21, ये इतने साल मैंने स्ट्रगल किए, तब जाके मैंने कहीं हेल्प से मैंने बना पाए। और उन लोगों को भी ये होता है कि तुम बना के क्या करोगे। और फिर जब मैं अपना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए गई थी, तो
या किरण की जो बाबू होता है बनाता है, उसने मुझे बोला कि आप तो पटेल होंगे, आप तो साहू होंगे, क्योंकि आपको देखकर नहीं लगता कि आप एक दलित कम्युनिटी से होंगे। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब देखने में क्या है, तो नहीं मतलब हमें पता है कि दलित कैसे रहते हैं, उनके पहनावे ओढ़ावे से पता चल जाता है। तो मैंने बोला कि नहीं, एक्चुअली मैं गायत्री सार की हूँ और मैं दलित कम्युनिटी से हूँ। तो उसने बाद में बात पलट दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब अलग था, मेरे तो कुछ फ्रेंड्स भी हैं दलित कम्युनिटी से, ऐसा बोलने लगा वो। तो हमारा पोजीशन भी एक कहाँ मैटर करता है, और फिर हमारा पोजीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारा कास्ट मैटर करता है सोसाइटी में, और वहां पे हम कैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, Yeah. और फिर वो Thank डॉक्यूमेंट you. इतना जरूरी हो जाता है कि हमारा शिक्षा के लिए भी हम आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो Yeah. चीजें रही है। थैंक यू सो मच गायत्री। एंड इस पे तबा एंड बाली, आप लोगों ने सालों तक इस पर बड़े पैमाने पे बच्चों को ये हासिल करने में सपोर्ट किया है, काम किया है, संघर्ष किया है। तो अगर आप भी इस पे कुछ जोड़ना चाहते हैं तो। तबा, आप पहले बात रखना चाहेंगे? आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। अ, मैं अगर दस्तावेजीकरण के बारे में बात करूं, मतलब संस्थागत ढांचे की चुनौतियों को अगर देखूं, तो मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूं। हर साल हम देख रहे हैं अपने लाइब्रेरी में जो क्योंकि अभी वर्तमान में मैं पिछले कुछ वर्षों से रेगुलर लाइब्रेरी के साथ में काम कर रही हूँ, और लाइब्रेरी में ज्यादातर वो बच्चों का आना होता है जो स्कूल से ड्रॉप आउट है या स्कूल नहीं जा रहे हैं और फुल टाइम लाइब्रेरी में होते हैं। तो ये बहुत तकलीफदेह है, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वापस स्कूल की तरफ धकेलने की, और हम जानते हैं कि वे बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ सकते हैं, नई हैसियत है माँ बाप की कि वो प्राइवेट स्कूल में डाले। तो मैं हर साल हम अप्रैल मई जून के महीने में बच्चों की लिस्ट के साथ हम जूझते हैं कि उनके दस्तावेज भी बनवाने होंगे, क्योंकि पहली कक्षा में हो या वापस 5वीं या 8वीं कक्षा से जोड़ना हो, तो हम देखते हैं कि जो बेसिक दस्तावेज हैं बच्चों के, उसमें बहुत कमियां हैं। और अभी स्कूल में भी जिस तरह से दस्तावेजों की मांग है, मतलब जब हम बात कर रहे थे राइट टू एजुकेशन, हम देख रहे थे कि कोई बच्चा शिक्षा से छूटे नहीं, हर हाल में वो बच्चे को किसी भी तरह स्कूल से जोड़ा जाना चाहिए, शिक्षा उसका हक है जब हम ये बात करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल ये कहते हुए एडमिशन खारिज कर देते हैं, आपको तो आधार लाना ही होगा, आपको तो जन्म प्रमाण पत्र लाना ही होगा, आपको तो पेरेंट्स का समग्र आईडी में बच्चे का नाम जुड़ा हुआ होना ही होगा। जब तक वो ये बनवाने की चुनौतियों को से जूझते हैं पेरेंट्स, तब तक वो बच्चा पहली कक्षा से तीसरी कक्षा की उम्र पे पहुंच जाता है। और जब वो बच्चे ये कागजों के चक्कर काटते हुए वहां से निकलते हैं और वापस जाते हैं, तो अभी तो तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी तो तुम्हें 5वीं में बैठना चाहिए, अभी तुम्हारा उम्र इतनी बड़ी है और तुमको तो कुछ आता नहीं है। तो ये रोजाना की चीजें हैं जिससे जो बच्चों का हक, हर बच्चे का हक है, लेकिन जो वंचित समुदायों के बच्चे हैं जो एकदम ही पिछड़े हुए हैं, वो इस तरह की चीजों से रोजाना रूबरू हो रहे होते हैं जब वो स्कूलों की तरफ दौड़ते हैं। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि समुदाय आधारित, हमने पहले भी बात की चुनौतियों के बारे में, लेकिन वही कि रोजगार के चलते भी बच्चे गैरेज के काम में है या मांगने जाने के काम में है या बत्ती के काम में है, उस दौरान भी बच्चों का खुद से भी कई दफा वो स्कूलों से दूर हो रहे होते हैं। लेकिन स्कूलों की भी जो जिम्मेदारी है या संस्था की भी जो दिलचस्पी है कि बच्चे क्यों बाहर हैं, बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं, बच्चे क्यों रेगुलर नहीं हैं, वो उतना चिंताजनक नहीं दिखता है। तीसरा, मैं बात करूंगी कि वर्तमान में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद, मतलब सिर्फ भोपाल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश भर में आप देखेंगे तो 29,000 से ज्यादा, 30,000 करीब सरकारी स्कूल बंद किए गए। और वो मर्ज करने का कहते हुए भी कि स्कूलों की हालत खराब है, वहां पे बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये कहाँ से बच्चे नहीं आ रहे हैं?
कौन बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं। इतना इनरोलमेंट कम हुआ है, मतलब करोड़ की संख्या में दाखिले कम हुए हैं। तो ये जो इनरोलमेंट कम, और ये बच्चे प्राइवेट में भी नहीं पहुंचे हैं, तो आप देखिए कि शिक्षा से पिछड़ने का रेशो बढ़ रहा है। और हम वो पिछड़ते रेशो पे चिंता करने के बजाय हम कार्यवाही कर रहे हैं कि स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, स्कूलों को खत्म कर रहे हैं। अगर मैं सीधा भोपाल के बारे में बात करूं तो इतनी बड़ी आबादी वाले इलाके में एक स्कूल 8वीं तक होना, एक स्कूल 5वीं तक होना। मैं नेहरू नगर कोटरा सुल्तानाबाद एरिया के बारे में बात करूं तो आराम से 5 अलग अलग दलित और आदिवासी पसमंदा समुदाय की पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी निर्भर करती है एक 5वीं तक के सरकारी स्कूल के ऊपर। 2 किलोमीटर के दायरे में अगला एक 8वीं तक का स्कूल मिलता है, और 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक अगला 10वीं तक का स्कूल मिलता है, फिर 5 किलोमीटर के दायरे में एक 12वीं का स्कूल मिलता है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन 2 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 5वीं तक के स्कूलों पे निर्भर रहेगी, किनसे सवाल करेंगे? ये जो लोगों के बच्चे इन स्कूलों में जा रहे हैं, जिनके माता पिता डेली कामगार हैं, घरेलू कामगार हैं, मजदूर हैं, कबाड़ के काम में हैं, वो कितना हस्तक्षेप करेंगे, कितना सवाल पूछेंगे कि हमारे एरिया में सरकारी स्कूल क्यों नहीं है, हमारे स्कूल की हालत अच्छी क्यों नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हम अभी वर्तमान में उस स्कूल में काम कर रहे हैं। मैं कहूंगी कि उसके बावजूद, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद, उस स्कूल में 100 बच्चे नहीं हैं, और समुदायों के बच्चे स्कूल से बाहर हैं। स्कूल को बच्चों की और बच्चों को स्कूल की जरूरत है, लेकिन ये जो दस्तावेजों का की इतनी प्रक्रिया को जटिल बनाया है, या स्कूल के ढांचे को जिस तरह से जर्जर हो रहा है, वो सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग नहीं, पूरी जो शैक्षणिक पद्धति की बात है, जो भाषा की बात है, जो स्कूल के करिकुलम की बात है, जो वहां पे गैर बराबरी की बात है, ये पूरा जो ढांचा है वो जर्जर, दिन ब दिन जर्जर होते जा रहा है। और वो इस आपको स्कूल से, आप शाला त्यागी नहीं है, आप स्कूल से पिछड़ने को मजबूर किए जा रहे हैं। तो जी, थैंक यू। इस पे चिंता करने की हमारी सरकार को चिंता क्यों नहीं है, ये सवाल बहुत परेशान करता है। और इसको ऐसे नहीं है कि समुदाय और बच्चे नहीं महसूस करते हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन रोजाना की चुनौतियां हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं। एक छोटी सी बात कहते हुए खत्म करूंगी कि एनईपी के तहत जो स्कूलों का मर्ज करना, और ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश में गंगा जमुना करके स्कूल है, या वर्तमान में बैतूल में आदिवासी और दलित समुदायों के बच्चों को स्कूल से बाहर देखते हुए एक व्यक्ति अपने स्कूल की स्थापना करते हैं, तो ऐसे स्कूलों पे भी हमला, शिक्षा के ऐसे संस्थान जो मुफ्त हैं या कम रियायत पे वंचित तबके के और समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी विविध समुदायों को जगह देते हैं शिक्षा के लिए, उन पे भी हमला है, और वो रोजाना बढ़ रहा है। तो ये बजाय आप शिक्षा की स्थिति को सुधारने और हालात को बेहतर करने के बजाय हम सब कहाँ जा रहे हैं, उन संस्थानों को भी खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चिंताजनक स्थिति है वर्तमान समय में। थैंक यू सबा। एंड सबा, मुझे लगता है कि उस पूरे मतलब वो पूरा जो जुल्मत का जो अपन ने ये बनाया, उसमें आपने कुछ उम्मीद के चिंगारे भी छोड़ दिए, क्योंकि आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, इतने अन्याय के बीच भी, इतने ढांचागत हिंसा के बीच भी। एंड मुझे लगता है कि इस सत्र को की समाप्ति एक रूप से उस उम्मीद से हमको करनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि चाहे वो भाषा की बात हो, चाहे वो करिकुलम की बात हो, चाहे वो हमारे बच्चों की कहानियां वहां नहीं पाने की बात हो, चाहे वो स्कूल के इतने सारे तरीके हैं बच्चों को उस व्यवस्था से वंचित रखने को, लेकिन फिर भी जगह जगह आप जैसे शिक्षक एंड हमारे सब जैसे स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, कई लोग जो इस मीटिंग में भी जुड़े हैं,
जगहों पे काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि अगर हम थोड़ा सा उस पे भी रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि जब सामाजिक कार्यकर्ता बनने का कोई सोचता है और शिक्षा में काम करने का उतरता है तो बहुत ही बड़े सपने से देखते हैं, और ये छोटी छोटी बातें लगते हैं कि ये तो केवल मतलब ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स है, इनको ऐसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, ये तो एनेक्डोट्स है, ये सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन ये एनेक्डोट्स नहीं है। एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनना वो एक एनेक्डोट नहीं है, वो एक 2-3 हजार सालों के गैर बराबरी के ढांचे को आगे करने का एक मॉडर्न और नया जरिया है। वो आपके पावर को प्रिजर्व करता है। उन इश्यूज को कैसे टैकल करें, किस तरह का शिक्षा से हम कर सकते हैं, और कैसे ये टक्कर देने वाले बातों को हमारे शिक्षा में, हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में, कहानियों में, लिटरेचर में ला सकते हैं। मुझे लगता है इस पे अगर हम सब थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच बहुत सारे कवि और लेखक भी है, यहाँ पैनल पे बैठे सभी लोग अपने राइट में ऑथर्स हैं, and बहुत ही सुंदर काम इसमें किया है कि हाउ डू वी मेक द स्कूल, द करिकुलम, द लर्निंग एक्सपीरियंस of a child who is every day faced with this kind of violence, both meaningful and powerful in a way to not just build hope, but also break those walls that are constantly created and made to stand up around us. तो इसको शुरू करने के लिए बाली, क्या आप अपने कहानियों का और अपने recent काम के झलक दे सकते हैं? Amina, could you also maybe share some of the images along with that as we speak? बाली, आप म्यूट पे हो। तो ये पहले फोटो से मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो ये पहला फोटो तब का है जब मैं 8-9 साल की थी और अभी मैं 33 साल की हूँ। तो जो भेदभाव मुझे इस फोटो में जब मैंने महसूस किया था, तो जब अभी मैं उसको लिख रही थी, अभी कहानी खत्म हुई है, पर उसके फोटोज अभी जो बना रहे हैं वो अभी शिद्दत से लगे हुए हैं, क्योंकि जब वो मेरे साथ शेयरिंग करते हैं तो मैं उनमें थोड़ा सा चाहती हूँ कि वो जो फील मैं उसमें महसूस करती थी वो फील फेस पर भी आए, और वो जगहों पर भी किस तरह से मैं दिखाना चाहती हूँ मेरी नजर से, तो वो दिखे। तो उस पर थोड़ा भी टाइम है। तो ये तब का है जब मैं 8-9 साल की थी, और स्कूल का है जब हम लोग आदिवासी बच्चे पहली बार स्कूल जाना शुरू हुए थे। और ये हमारी पहली पीढ़ी है जो स्कूल जा रही है, क्योंकि हम लोग घुमंतु समुदाय के हैं और पहली बार मतलब ऐसे घूमते हुए काम करते थे, जहाँ खेती कोई खुदाई के लिए महीने लेके जाता था, कोई 1 महीना 2 महीने काम कर दिया, कहीं पर कुआं खुदाई का हो गया, तालाब खुदाई का हो गया। तो ऐसे ही पूरा हमारे पूर्वज काम करते आए थे। और अभी 60-70 सालों से भोपाल में बस गए, क्योंकि उनको लगा कि शहरों में ज्यादा काम मिल रहा है, क्योंकि इतने सारे जो बिल्डिंग्स भोपाल में ज्यादातर बने हैं वो हमारे पूर्वजों ने ही बनाए हैं। और जो बड़ा तालाब, आप कभी भोपाल आए तो बीच में जो दरगाह है, वो दरगाह भी अभी जो बस्ती में रह रहे हैं, जो हमारे मम्मी पापा के जो साथी लोग थे और मम्मी पापा साथ में शामिल थे, उन लोगों ने बनाया है। तो इस तरह का शहरीकरण जब हुआ और मुस्कान संस्था जब हमारे जीवन में आई, जब हम लोग बस्ती में गंगानगर में जहाँ रह रहे थे और पहली बार प्राइवेट स्कूलों से हमारा पाला पड़ा और फिर जाना शुरू हुआ, तो कभी समझ में नहीं आया कि ड्रेस पूरा कंप्लीट पहन के जाओ तो ही वहां पर मतलब घुसना अलाउड है। मैचिंग लेगी पहन के जाओ, जैसे नीला ड्रेस पहने तो नीला लेगी होगा तो ही अंदर आओगे, नहीं तो क्लासरूम के बाहर खड़े रहोगे अगर तुमने लाल पहन के आ गए या फिर हरी पहन के आए। तो कभी कपड़ों पर, कभी भाषा पर लगातार लड़ाइयाँ होती रही। कभी अच्छा बर्ताव मतलब हमारे समुदाय के बच्चों को और हमको कभी नहीं मिला। इसके साथ साथ जो दो दूसरा तीन है, पंक्तियां पढ़ लोगे आप? जरूर। मेरा मोबाइल नाटक कर रहा है, लग रहा है।
मैं Bali, so जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। sorry to cut you short. Is it okay if we move on to the next presenter? बस टाइम के लिए, ताकि हम Q&A के लिए भी टाइम रख पाए. हाँ, ठीक है, उस समय शेयर कर सकते हैं। Thank you so much. It's so sorry. Yeah. कोई बात नहीं। Yeah. तो ये छपेंगी तो जब आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा। एंड ये भी बस बता दें कि बाली ने बहुत काम इसका भी किया है कि गोंडी भाषा को स्कूलों में लाने के लिए बहुत सुंदर कहानियां, बाइलिंगुअल गोंडी हिंदी इंग्लिश में भी बहुत सारे बहुत सुंदर लिटरेचर निकाला है बच्चों के लिए। बट Amina, let's move forward on the thing, and Revati can share. Yeah, I just want to say a couple of things. I won't take a lot of time. We work with two tribal communities, Bumbu Matakarar and Narikuravar, who were actually musicians, performers, makers, healers, and transporters. But they are reduced to itinerant vending now. So they keep moving during certain seasons, and that those are the seasons, like Sabha said, the dropout happens a lot. And we have to find ways to address these issues of the nomadic tribes is one thing. Also, certificate तो नहीं मिलता है, but credit तो मिल जाता है. We have a situation where the debt trap is really pressing parents, and that's forcing children to go and to work and do this. So at one side, there are no documents. Entitlement, we call entitlement government scheme से जो welfare मिलता है. But those are not available. But credit is so easily available. It's targeted on very, very marginalized communities, and that's also becoming a very big problem. But looking at it holistically also means this malnutrition, there's livelihood problem, there's a documentation issue. But I also feel like Baba Saheb says caste system, or I think Gayatri pointed out how Adivasis and others are also taking into the caste system and don't treat Dalits equally. This is something that's learning. That is also a question that educators and educationists have to think about. What is it that we are giving to them as education? Because these are values that were not in these communities, but it is also coming in. But I feel like Baba Sahib says that caste system confiscates one's personality, or at least attempts to confiscate the self and the personality of the of everyone. And we at Vanaville are trying to, we see art as one way of reclaiming this, and that is why we take art as one tool and one way, and our children are so good at it. I mean, all children are good at it, especially the NTDNT Adivasi children. And we use art as a way of reclaiming this thing, this legacy, this history, and their own self, and how to express themselves. Because to identify yourself, I really like when Gayatri said to show people in a certain way, Dalits or Adivasis or NT people in a certain way, like they're affected people or victims. We have to move away from that dialogue. Even in our own progressive spaces also, there are people who come with a distinct history of resistance and of being themselves, and there's such so much joy in them, and they're such artists. So these are some of our children. So Selvarani is from a Bumbu Matakarar community. She's a textile designer today, and she created this kalamkari artwork about the bull they take around as soothsayers and healers. And the second in between photo is of Buddy Vale, who's also a visual communication graduate in final year. So he made two paintings. This is of a woman, of a Bumbu Matakarar woman who carries things and sells around. It was a dignified job, and it is not seen as this. So, and this third picture where Dakshin Bhai is also appreciating this student, he has not gone to college. He is not, I mean, he finished up to 8th standard, but he's a sculptor and he's working in a sculpture studio. And he also creates so much of artwork about their community and about generally about this world. So I find this very hopeful that children, if they are nurtured and walked along with the proper educational systems and structural supports also, they can move towards reclaiming their own history, and then they can equally come and talk about themselves, and their voices would be I mean, I'm so much more powerful, I feel, and that is something that gives me a lot of hope that children within this academic education or outside of it can learn to look at themselves and see themselves as equal participants in this society. Thank you. Thank you, Revati.
Um, Gayatri, would you like to share what this is? Yes. And yeah, But I'm ये really sorry. I'm going to have to request you to be very brief because in the interest of यस time, यस we have यस to leave for questions. Yeah. या हाँ, तो ये मैंने पुणे में कबड्डी जब खेला था उसका है, और मैंने कैसे स्ट्रगल किए थे, उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे। तो उसको मैं छत्तीसगढ़ से निकालना, फिर यहाँ सबमिट करना ऑनलाइन, उसको उसको रिक्वेस्ट करना, प्लीज मुझे दे दो, मैं कबड्डी खेलूंगी। क्योंकि पिछली बार जब मैं कबड्डी नहीं खेल पाई थी, वो मेरे कास्ट और मेरे कम्युनिटी की वजह से ही नहीं खेल पाई थी, क्योंकि जो मेरे कोच थे वो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। एक्चुअली मैंने वो कबड्डी टीम मैंने ही खुद बनाई थी, लोगों के घर जा जाकर कि हम खेलेंगे हम खेलेंगे। और वो मैं प्रो कबड्डी देख करके बहुत ये होती थी, खुश होती थी। तो मैंने सोचा कि हम भी कबड्डी बनाएंगे। और जब तक प्रो कबड्डी शायद हुई भी नहीं थी, जब मैं 8 9 से खेलती थी, और उस समय से मैंने टीम बनाए थे 9 10 में। फिर उस टीम को हम कैसे स्टेट तक पहुंचे, फिर जब स्टेट तक पहुंचे और हमने कैसे खेला, फिर उसके बाद जब अपर कास्ट के लोगों को रियलाइज हुआ कि ये लड़की तो मतलब ऐसे हमारे बच्चों के साथ में इनाम इनाम लेगी या कुछ ऐसे ही ट्रॉफी जीतेगी, तो हमारे बच्चों के साथ में ये नहीं खेल सकती। तो फिर उन्होंने कैसे मुझे छोटे टीम में खिलाया, और फिर उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि तुम बड़े टीम में नहीं खेल सकती हो। तो ऐसे उन्होंने एक स्ट्रेटेजी करके मुझे टीम से निकाला, और मुझे निकाला नहीं, एक्चुअली मैं खुद निकल गई उनके टीम से। क्योंकि अगर जिस टीम पे मेरी वैल्यू नहीं है और जिस टीम को मैंने बनाया है, तो उस टीम पे मुझे नहीं खेलना करके मैंने भी छोड़ दिया उसको। तो ये था कि मैं पुणे में खेल पाई, और फिर पुणे में हमने फिर एक अलग टीम बनाए, और मतलब इधर मैंने खेला 2000 यही 24 में। तो वो मेरा लास्ट नहीं था, क्योंकि मैं बाद में और भी खेलूंगी, मुझे बहुत फेवरेट गेम है मेरा। तो कास्ट इज जस्ट लाइक, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होगा जहाँ पे मैं खेल पाऊंगी। और Thank you very much, Gayatri. That's a real story of उम्मीद। वो अपने गांव का पहला गर्ल्स कबड्डी टीम उन्होंने ही शुरू किया, और अभी वो अपने यूनिवर्सिटी के टीम में खेल रही हैं। And she's also written an article about her struggle of this, and she's got an award for that article. Um, I think let's move towards to the last slide. Amina, Sabah has already spoken about rationalization. We slide. I can't see your screen anymore. So I think I'd like to thank all the panelists very much for such an enriching discussion. I know that actually the number of issues that we've opened up today require a lot more time and depth, and lot, like almost whole paradigm shifts in how we see adversity. So this was just a starting conversation, and thank you all for being so eloquent and sharing so beautifully. Just to end this, I think I would like to end with an imagination of education written by 4 students from New Learning Center, because for us, I think resonating entirely what Revati said, that what Baba Sahib said, that ours is not a battle for wealth or power, but a battle to reclaim the human personality, and to have such a broad vision of education, I think is what will actually enable us to truly challenge the structural violence and the structural inequalities that our children are faced with. So these are 4 students, Safak, Shaheen, Akanksha, and Kavita, who have written about what does getting an education mean to you. We see that different people have different meanings of education. Most people think getting an education only means to get a degree, a good job, and to keep the family happy. Somewhere our parents also see this dream. But is getting an education only for getting good jobs and degrees? All people want a degree and a good job. We also want that. But we dream of more than this. We want to build a Begumpura. Begumpura is a poem in the dream city of Raidas. Raidas said it is a place where all people are equal, where no one is rich and no one is poor, where each and every person has equal rights and equal opportunity. Na fikr, na pachtawa, na kisi ki maliki. This dream makes us love ourselves. We feel that getting an education should mean that we stand against injustice and in solidarity with others, that we learn to be empathetic, to fly in the sky,
but not only alone, to fly together with all the people who share this dream of building a Begumpura. Thank you all for listening in to all of us today. We'll open the floor to. Thank you so much, Shreya, Revati, Bali, Gayatri, and Sabha. I would just want to invite questions because just being mindful of time. अगर किसी के पास कोई सवाल है, please feel free to just come off of mute and ask the panelists because I don't see any questions on the chat, so we can all just interact. Anyone who wants to go? Amina, can I go? Yes, Zara, go ahead. Hi, I thought that was a really beautiful panel. I think my question is, I know that we're focusing on education as a way to kind of end the systemic issues. But something that I'm hearing a lot in the stories are about the idea of speaking to the community and enabling forces within the community to help change realities. And I guess what my question is that do we need to, when you say education, what does that actually mean? And are there ways to empower those within the communities that maybe do we need to also rethink the way that we're talking about education, I guess is my question. And how do you, if for a community organizer or somebody who is working in the localities, is the end goal education, or what is the goal, and how does education kind of fit in that flow? Zara, I'll just paraphrase your question. Sure. Sure. Just let me know if it's correct or not. So I think what Zara is saying is कि education का definition जब हम इन communities में काम करते हैं और जब इतनी सारी complications समझते हैं तो education का purpose exactly क्या है, education का end goal क्या है, या education ही end goal है, या हम किसी और तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर हम बढ़ रहे हैं उस तरफ तो वो क्या है. Zara, is that fine? Yeah. Yes. Yeah. Anyone who'd want to take that question. Amina, we could also maybe take one or two more, and then if there's a common theme, respond. Sure. Sure. Hima, do you want to just ask your question and we'll add that to the responses? Yeah. Hi, good evening. I'm Hima Bindu and I'm working in Hyderabad. My question is, we spoke a lot about documentation, and that's also a very huge challenge I'm facing while working with the community. If some of you could share any best practices of what worked for you in mitigating this challenge in your respective communities, and if I can emulate this back home, I think I'll be grateful, because I was not able to crack, or maybe just barely crack the surface. Got it. Thank you, Hima. तो जब डॉक्यूमेंटेशन और पेपर्स और दस्तावेज की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली आपके केसेस में क्या काम किया है ताकि हिमा भी अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकें. अमन, just your question and then we'll have to move to answers. एक चीज़ जो आई थिंक काफ़ी पैनलिस्ट ने बात की थी जो कॉमन था वो था एक्सेंट. जब जैसे क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो बहुत लोग अब शहरों की तरफ आते हैं, और क्योंकि हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है, बोलने का तरीका हर जगह के लोगों का अलग अलग है, तो ये ज़रूर होता है कि जब शहरों में जो स्कूल है वो टीचर्स या स्कूल भेदभाव तो करता है आप जिस तरीके से बात करते हैं. तो आपने भी ये जिक्र किया था अपने मतलब पैनलिस्ट लोगों ने इस बारे में, तो उन्होंने क्या मतलब किस तरीके से इसको मैनेज किया, हैंडल किया, अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताया कि जो आपका बोलने का तरीका और लहजा है वो आपको किसी से ऊपर या नीचे नहीं बचाता, ये आपने कैसे अपने बच्चों को बताया, ये मैं भी थोड़ा जानना चाहूंगा. अगर आपके पास अभी नहीं होगा टाइम तो इसको आप शेयर भी कर सकते हैं इसका आंसर बाद में. Thank you, Aman. All right.
I just want to say that we want to answer all of these questions. If people have to leave at 8:30, that is totally fine. Just know that a poll will pop up on your screen. आप जाते जाते please respond करके जाइएगा. And those who want to stay back, we'll keep the meeting running for a few more minutes ताकि हम answer कर सके. And thank you everyone so much for joining. Shreya, do you want to just start with your thoughts on Zara's question about the end goal of education, and others can just take it ahead. Yeah, I think thank you all for your questions as well. I think, Zara, it's a very large question that you're asking, and I think it is navigating the answer to this question that drives all our work. But if the question is, does education need to be completely reimagined? Yes, it does. I think that is something we probably all share in our imagination of education, in the sense that, yes, we do need to reimagine education entirely. And I think that as the various imaginations emerge from when you see education interventions rooted in larger social movements, and you see education as a means of social transformation, then there are a lot of other questions that emerge about education. I think all of us through our work are answering it in different ways. And I think coupling this with Aman's question about bhasha, मेरे ख्याल से इस पर बात करने के लिए बाली सबसे मतलब अच्छा से बात रख सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो भाषा एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि भाषा एक जरिया दोनों मतलब हिंसा का भी बनता है और एक प्रकार का मुक्ति या इमेंसिपेशन का भी बनता है. बात केवल लहजे की बिल्कुल नहीं होती है. जब आप कुछ कुछ भाषाओं को एकदम डोमिनेंट बनाते हो और बनने देते हो, और उसी भाषा को जब आप इम्पोज करते हो, तो आप कुछ भाषाओं को एंड भाषा के साथ साथ पूरे जीवन जीने के तरीके, पूरे कल्चर्स को आप कंप्लीटली खत्म कर देते हो. एंड आदिवासी भाषाओं के साथ यही हो रहा है. छत्तीसगढ़ के एक टेक्स्ट बुक में पाया गया, एक लास्ट में जो सरकार ने बनाया था कि फॉरेन वर्ड्स, एंड फॉरेन वर्ड में उर्दू के शब्दों को डाला था. उर्दू अगर फॉरेन है तो फिर भारत में कौन सी भाषा बनी है शायद हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उर्दू केवल और केवल इस सब कॉन्टिनेंट में शायद मिलती है. तो आप करना क्या चाहते हो, वो एक कल्चरल वायलेंस की बात है, जो शायद फिर उन aims of education, Zara, perhaps, that what are the aims of formal education if it is to perhaps perpetuate certain forms of cultural hegemony in a sense. तो बाली, अगर आप इस पे थोड़ा बोलना चाहते हैं भाषा के सवाल पे, कि कैसे भाषा को डिनाई करना एक्चुअली एक बहुत बड़ा चीज होता है और वो शिक्षा के उद्देश्यों से जुड़ा है. इट इज लाइक also denying us our histories. When you are told आप गंदे हो, आपसे बदबू आती है, there is a whole history to that much before the British. It is a casteist carcelarity that makes you criminal by birth because you belong to a certain community, because you speak a certain bhasha. पाली. तो जब पहली बार स्कूल जाना चालू किया तो मतलब स्कूल हिंदी में थे, और हमारा जो मोहल्ला है वहां पर मतलब 400-500 परिवार है, तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि बाहरी भाषा को अंदर से सीखना पड़े या फिर जरूरत पड़े, क्योंकि मम्मी पापा ही थे जो मतलब बाहरी भाषा में कुछ काम करना हो या जाना हो तो उन तक सीमित थी. पर जब पहली बार स्कूल गए और फिर वो भाषा जब आने लगी, तो उस भाषा को अपनाते हुए हमने अपनी भाषा भी क्लासों में और क्लास के बाहर जो मैदान होते हैं खेलने के लिए, जो लंच का समय मिलता है, या फिर स्कूल में क्लास में मैडम नहीं आई तो वो थोड़ा जो समय अपने साथियों के साथ बातचीत करने का होता है, तो उस दौरान समझ में आया कि अपनी भाषा सिर्फ अपनी बस्ती तक ही सीमित है. बाहर लेके जाओगे तो कभी भी उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी. हमेशा उसको मतलब कंजड़ बोल के, या फिर मतलब कंजड़ बोलना, या फिर मारा पीटी करने वाले, या फिर ऐसे ही हैं. तो हमेशा भाषा को लेके जितने भी बच्चे थे हम सबको ही मतलब भेदभाव का सामना करना पड़ा, कि जैसे भाषा बोल रहे हैं पर पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, मतलब हिंदी सीख गए हैं, मैडम जो सवाल दे रही है करके जा रही है, होमवर्क करके जा रहे हैं, तो भी कभी भी
क्लास का मॉनिटर नहीं बनाया गया, क्योंकि तुम लोग आपस में बात करने लगते हो। जैसे ही कोई बाहर का आता है, प्रिंसिपल आती है, या ये जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं या जो भी बड़े तबके के बच्चे हैं, उनके माँ बाप आके देखते हैं कि ये बच्चों को भी तुम लोग हमारे बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो, तो हमारे बच्चे क्या, ये लोग कितना जोर जोर से चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जबकि वो हमारी भाषा में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक में हम लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो उस पर भी क्लास के बाहर खड़ा करना और डांटना कि क्लास के अंदर तुम अपनी भाषा इस्तेमाल नहीं करोगे, जब भी कोई दिख गया तो फिर बाहर खड़े रहना या फिर मैदान में खड़े रहना, पूरा 1-2 पीरियड तक खड़े रखना। तो ये सब उस समय भी होता था जब मैं 8-9 साल की थी, ये अभी भी होता है जब छोटे बच्चे, अभी 8-9 साल के बच्चे जो प्राइमरी में या फिर KG 1 में, अभी जो हमारे बहनों हैं या भाई हैं, उनके बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं, और ज्यादा दूर नहीं है, टंकी वाली जो भोपाल अभी जो बस्ती है उसके बगल में ही है, मतलब 5 मिनट का रास्ता है, उसमें भी खड़े कर देते हैं कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, कोई अनुभव नहीं है, इतना पढ़ा दिया, इतना कर दिया, फिर भी फेल हो रहे हैं। कोई बच्चा पहली क्लास से 5वीं तक चला गया है पर उसको नाम लिखना नहीं आ रहा है, वो नाम भी लिख रहा है पर मात्राएं जो पीछे लग रही है वो आगे लगा रहा है, आके डंडा अगर आगे लग रहा है तो वो पीछे लगा रहा है। तो अभी जो 1-2 साल तक सिर्फ गोंडी में ही पढ़ाने का जब प्रयास किया, तो समझ में आया कि बच्चों को आता सब कुछ है पर पूछने का तरीका अलग है, और उनके अनुभव उनमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और फिर जैसे बस्ती में अगर कुछ बच्चे रह रहे हैं तो गाय पर अगर निबंध लिखने को बोल रहे हैं कि गोबर से क्या कर रहे हैं, गोबर से क्या बन रहा है, तो किसी बच्चे ने लिख दिया कि गोबर से लीपते हैं, तो उस पर ये बोलना है कि क्या तुम गांव के हो, गवड़िया हो, या फिर तुम शहर में नहीं रहते, गोबर कहाँ लीपा जाता है, तुमको इतनी समझ नहीं है। पर टीचर जो पूछ रहा है उसको भी ये समझ नहीं है कि जो बस्ती में अगर बच्चा रह रहा है तो बस्ती के जो झोपड़ी है, तो झोपड़ी की दीवार कच्ची मिट्टी की है, वो दीवार पक्के की नहीं है, ना ही नीचे उसके फर्श है, नीचे उसके जमीन है, दीवार भी उसके मिट्टी के हैं, तो मिट्टी नीचे और दीवारों पर लीप रहे हैं। तो वो अगर अनुभव उसका है कि माँ गोबर ला रही है और लीप रही है, और वो सेंटेंस में लिख दिया है कि गाय के गोबर से लीपते हैं, तो वो सेंटेंस काट देना और ये बोलना कि गोबर से कंडे बनाते हैं ये लिखो, या फिर वो हवन में जो कुछ कुछ डालते हैं वो लिखो, गोबर से कुछ और बनता है ये लिखो, ये क्या कि लीपना है, ये सब छोड़ो। तो कभी भाषा के अनुभवों को मैडम ने अभी तक चेंज नहीं आया कि कोई मैडम ये पूछे सरकारी की या प्राइवेट की कि तुम्हारे घर में क्या होता है, तुम्हारा जो समाज है वो किस